Okay. Today's sermon I have preached about 4 or 5 years back. I preached once. आज का जो संदेश है करीबन 4 या 5 वर्ष पहले मैंने इसका प्रचार किया था. And during the week I thought I need to remind some of the things in this sermon once again to all of us. और बीते हफ्ते में मुझे महसूस हुआ कि कुछ ऐसी बातें हैं इस संदेश में जो मैं चाहता था कि एक बार फिर से हम लोग याद करें. Now in life there are times that we come across situations beyond our control. जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां जब वो कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं. They are beyond our control. We do not know how to handle them, what to do with those situations, in those situations. और वो परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और हमको ये नहीं मालूम होता है कि अब कैसे इनका सामना किया जाए. Most of the time we get panic. और कई बार जो है हम लोग बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं. We get tensed, we plan and we scheme, we try to do so many things to come out of the situation. और हम बहुत सी योजनाएं बनाते हैं और बहुत सी प्रयास करते हैं कि उस परिस्थिति से हम कैसे बाहर निकलें. We run and here and there and try to seek many people's help. Somewhat try to come out of the situation, difficult situation we are in. और हम इधर उधर भागते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं कि कैसे इस मुश्किल परिस्थिति से हम बाहर निकलें. You know, when you read Bible, there are so many people who came out of this kind of difficult situations. जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों से बाहर निकले. Today, the Bible portion that we read today talks about Jehoshaphat, how he came out of the difficult situation he was in. और आज का जो पाठ है वो बताता है कि राजा यहोशाफात वो कैसे अपनी मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकला. Please turn, if you have Bible, please turn with me to Chronicles chapter 12. 2 Chronicles chapter 12, because we are going to study from that 22 verses today. Chapter 20 अंकल. Chapter 20. 2 Chronicles chapter 20. दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और 1 से 22 पे आज हम लोग ध्यान करेंगे. In this chapter we see how Jehoshaphat dealt with the difficult situation he was in. और आज हम देखेंगे कि कैसे यहोशाफात राजा की जो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में वो था तो कैसे उसने वहां पे क्या किया. Jehoshaphat was the fourth king after the kingdom divided into two. जब वो राज्य पूरा साम्राज्य दो में विभाजित हो गया था तो चौथा राजा जो था वो यहोशाफात था. He was a godly man. वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था. He followed the Lord in all that he did. और जो कुछ भी वो करता था उसमें वो परमेश्वर की बातों पर को मानता था और चलता था. Verses 1 and 2 says पहला तो दूसरे पद में लिखा है, the Moabites, Ammonites with some Meunites came to make war with Jehoshaphat. किसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई कर दी. Verse 2 says some men came and told Jehoshaphat, a vast army is coming against you from Eden, from the other side of the sea. तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है और देख वो हसोसांतमार तक जो एनगदी भी कहलाता है पहुंच गई है. A vast army was coming against him from Edom. एदोम की तरफ से एक बहुत बड़ी सेना उसकी तरफ आ रही थी. It says this other side of the sea, it is a salt sea, other side of the salt sea. और जो नमक सागर है उसके दूसरी तरफ से वो सेना आ रही थी. Edom, Moab, Ammon were on the other side of the salt sea. और ये जो शहर है ये नमक वाले जो सागर था उसके दूसरे तरफ थे. ये The Engedi was in this side of the salt sea. Sorry, what uncle? Engedi Hazazon Tamar is this side of the salt sea. इनका जो शहर था वो इस तरफ था नदी के. So Edom and Ammon already they crossed the sea and then they came to Engedi. तो ये लोग शहर पार करके इस तरफ आ चुके थे. So actually that means they are very close to Jerusalem. इसका अर्थ यह हो गया कि यरूशलेम के ये लोग बहुत नजदीक आ चुके थे. According to the map that I saw, it was only 90 miles from Engedi to Jerusalem. और जहां तक ये लोग आ चुके थे
वहां से यरूशलेम तक करीबन 90 मील की दूरी ही बाकी रह गई थी। It was an emergency situation. और ये एक आपातकालीन स्थिति यहाँ पर बन चुकी थी, It was a huge army. क्योंकि ये जो सेना थी बहुत बड़ी सेना थी। He did not have that kind of power to engage this army in the war. और उसके पास इस प्रकार का कोई सामर्थ नहीं था कि इतनी बड़ी सेना से लड़ सके। He himself says in verse 12, Lord, we do not have the power to oppose this enemy. और 12वें पद में उसने खुद कहा कि हे परमेश्वर, मेरे पास इतनी सेना नहीं है कि ये जो सेना आ रही है इसका मैं सामना कर पाऊं। He was in a difficult situation. और उस बहुत ही ज्यादा कठिन घड़ी में वो था। The army that huge army can destroy him within no time at all. और वो जो बड़ी सेना जो आ रही थी वो बहुत कम समय में वो नाश कर सकती थी यहोशापात की सेना का। It was a very emergency and difficult situation he was in. और इसलिए बहुत ही आपातकालीन परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में वो था। Now we will see how he faced that difficult situation. अब हम देखेंगे कि उसने इस कठिन परिस्थिति का सामना कैसे किया। Verse 3 says, alarmed, Jehoshaphat resolved to inquire of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. लिखा है कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। The first thing he did was to go to the Lord, resolve to seek the Lord. जो पहले काम उसने किया वो ये किया कि सबसे पहले वो परमेश्वर की खोज में गया। He did not plan a counter attack. उसने कोई उनको युद्ध का कैसे युद्ध करेंगे उनके ऊपर इसकी कोई योजना उसने नहीं बनाई। He did not call his army officers to make a plan to attack them. उसने अपने सेना के अधिकारियों को नहीं बुलाया कि अब योजना बनाई जाए कैसे हम इनके ऊपर धावा बोलेंगे। He did not go to any neighboring country for help. और किसी पड़ोसी देश के पास मदद मांगने भी नहीं गया। He took his problem and went to the Lord. वो अपनी समस्या को लेकर के सीधे परमेश्वर के पास गया। No, he did not go to any human being. वो किसी मनुष्य के पास नहीं गया। Because the human being have their own limitations. क्योंकि जो मनुष्य हैं उनकी अपनी ही सीमाएं होती हैं। The psalmist says, do not put your trust in princes, in mortal man who cannot save you. और भजन लिखने वाला कहता है कि जो राजकुमार हैं या जो भौतिक चीजें हैं, जो चीजें नाश हो जाती हैं, उनमें अपना विश्वास मत लगाओ। When their spirit departs, they return to the ground. क्योंकि जब उनकी आत्मा प्राण चले जाते हैं तब वो भी वापस धरती में मिल जाते हैं। You know, human being, when you go the problem to human being, we should realize human beings always have their limitations. जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो हम इस बात को जान लें कि जो मनुष्य हैं हमेशा उनकी कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं। But God does not have any limitation. लेकिन परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। No, man's resources are available as long as the man is alive. मनुष्य के जितने भी साधन हैं वो तभी तक हमारे लिए मौजूद हैं जब तक मनुष्य जीवित है। But God's resources are available as long as we are alive. लेकिन जो परमेश्वर के साधन हैं वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। Please remember it very clearly. Man's resources are available as long as he is alive, but God's resources are available as long as we are alive. तो इसको याद रखें कि मनुष्य के जो साधन हैं वो तभी तक उपलब्ध रहते हैं जब तक कि कोई मनुष्य जीवित है, लेकिन परमेश्वर के साधन जब तक हम जीवित हैं हमेशा हम परमेश्वर के साधनों का उपयोग कर सकते हैं। So whenever we have problem, any difficulties, the first thing we should go is take the problem and go to God. इसलिए कभी भी जब कोई समस्या हमारे सामने कठिन समय आए तो सर्वप्रथम हम परमेश्वर के सामने अपनी समस्याओं को Here लेके जाएं। Jehoshaphat did not go to any man. The first thing he did was to take the problem and go to the Lord. यहाँ पर यहोशापात किसी मनुष्य के पास नहीं गया, लेकिन सर्वप्रथम वो परमेश्वर के पास अपनी समस्या को लेके गया। The second thing he did was proclaim a fasting for the whole nation. जो दूसरा काम उसने किया, उसने उपवास की घोषणा करवाई पूरे राज्य में। So what is fasting? तो अगर हम उपवास की बात करें तो उपवास क्या है? Why do we fast? क्यों उपवास रखते हैं? No, fasting is willingly skipping a meal or two to be in the presence of the Lord. और इसका एक मतलब ये हो गया कि हम एक या दो भोजन ना करें और परमेश्वर की उपस्थिति में रहें।
It is not a blackmail. और ये जो है परमेश्वर को ब्लैकमेल करना नहीं है. See, for politicians, it is like a blackmail. और जो जितने भी जो हमारे नेता लोग हैं उनके लिए एक प्रकार का ब्लैकमेल है. Most people use it to blackmail the country, blackmail other people. और कई लोग जो है इसको ब्लैकमेल करने के लिए उपवास का प्रयोग करते हैं. Or Anna Hazare used it so powerfully to blackmail the government. और अन्ना हजारे ने इसको कितनी बार उपयोग किया उपवास करने का ताकि वो अपना सरकार से काम करवाने पाए. The children use it to blackmail their parents. If you don't give it, I won't eat. So the children use it to blackmail their parents. और बच्चे जो है वो अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाऊंगा. And husband and wife blackmail each other. और जो पति पत्नी वो भी दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं. But you cannot blackmail God saying, unless you do this, I will not eat. लेकिन परमेश्वर को आप इस प्रकार से ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं कि जब तक आप ये करेंगे नहीं तब तक मैं खाऊंगा नहीं. It won't work that way. इस प्रकार से ये नहीं होगा. So it is not a blackmail when you fast. It is not a blackmail. You are not telling God, unless you do this one, I will not eat. You are not saying that to God. तो ये ब्लैकमेल नहीं है कि हम परमेश्वर से ये नहीं कह रहे हैं कि जब तक आप परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे. Then what is fasting? Why do we fast? तो फिर उपवास क्या है, क्यों रखते हैं उपवास? You know, Psalm 35 verse 13, David says, और 35 में भजन में दाऊद कहता है 35 के 13 में, I humbled myself with fasting. कि मैंने अपने आप को दीन बना लिया है उपवास के द्वारा. Yes, I humbled myself with fasting before the Lord. कि मैंने उपवास के द्वारा अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बना लिया है. I fast because I want to humble myself before God. और मैंने उपवास रखा है क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने अपने को दीन बनाना चाहता हूँ. Joshua, can you please read 1 King chapter 21 verse 27 to 29? 1 King chapter 21 verses 27 to 29. Joshua, can you read? Yes, uncle. When Ahab heard these words, he tore his clothes, put on sackcloth and fasted. He lay in sackcloth and went around meekly. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite. Have you noticed how Ahab has humbled himself before me? Because he has humbled himself, I will not bring this disaster in this day, but I will bring it on his house in the days of his son. Martha, can you read it, please? Verse 27 to 29. 1 King chapter 21, 27 to 29. एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा. तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा. क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर विपत्ति भेजूंगा. No, Ahab was one of the most wicked king of Israel. जो राजा एहब था वो इज़राइल का एक बहुत ज्यादा धूर्त और बुरा राजा था. One day Lord sent Elijah the prophet to go and tell Ahab, the wicked king. और एक दिन परमेश्वर ने एक दिन एलाइजा नबी को भेजा अहाब के पास कुछ कहने के लिए. And he told them all the disaster the Lord was planning to bring on Ahab. और उसने जाकर अहाब को बता दिया वो सारी कठिनाइयां जो परमेश्वर अहाब पे डालने वाला था. When Ahab heard that word of God, he tore his clothes, fasted, and went around meekly. और जब अहाब ने ये सब बातों को सुना तो उसने अपने वस्त्रों को फाड़ दिया और उपवास किया और वो नम्र बन गया. When God saw that, he told Elijah, have you seen how Ahab humbled himself? और तब परमेश्वर ने देखा और एलाइजा से कहा कि देखा तुमने कि कैसे अहाब ने अपने आप को विनम्र कर लिया. God accepts fasting as humility on our side. तो परमेश्वर की दृष्टि में जो उपवास है उसको परमेश्वर यूं देखते हैं कि एक हम जो अपने आप को उनके सामने विनम्र कर रहे हैं. We will see one or two more examples. Della, can you read Ezra chapter 8 verse 21 to 22? Ezra, Yes, Pastor. 8, 21, 22. Yes, Pastor. Then I proclaimed a fast
there at the river Ahava, that we might humble ourselves before our God to seek Him, to seek from Him a safe journey for Is ourselves, there a command? our Thou children, shalt pass and all left our goods. kneeling no. For I was ashamed to ask the king for a band of soldiers and horsemen to protect us against the enemy on our way. Since we had told the king, the hand of our God is for good on all who seek him, and the power of his wrath is against all who forsake him. Isra, Martha, verse 21-22. Isra chapter 8, verses 21-22. तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसीलिए हम इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। Okay. See, when Ezra the priest was returning from Jerusalem with group of people, और एजरा जो था जब वो लौट रहा था एक समूह के साथ लौट रहा था, it was second return from Babylon. और बेबीलोन से दूसरा जो गुट था वो लौट रहा था। He had a lot of gold and silver and priceless articles with him. और उनके साथ में बहुत से सोना था, चांदी था और बहुमूल्य वस्तुएं उनके साथ थीं। But he was afraid to ask the king for protection of the soldiers to reach Jerusalem. लेकिन वो राजा से मदद मांगने में डर रहा था कि उनको अगर थोड़ा सा सहायता चाहिए, सिपाहियों की सहायता चाहिए, तो ये वो डर रहा था राजा से सहायता मांगने में। So he says, we proclaimed fast near the Ahava canal to humble ourselves. तो उसने कहा कि हमने उस स्थिति में एक उपवास का आह्वान किया ताकि हम विनम्र हो जाएं। Again he says, we fasted to humble ourselves so that God will give us the protection to reach Jerusalem without any harm. तो उसने कहा कि हमने उपवास रखा ताकि अपने आप को विनम्र कर लें, ताकि परमेश्वर हमें सहायता करें यरूशलेम पहुंचने के लिए। Now when Jonah went to Nineveh and preached the news, जब योना था वो निनेवे गया और वहां जाके उसने प्रचार किया, the king of Nineveh proclaimed fast for the nation and God listened to them. They fasted and humbled themselves. निनेवे का राजा ने भी वहां पे उपवास किया और कहा पूरे अपने राज्य में उपवास करवाया। In the Bible, if you see, so many people fasted and received the blessing from God. तो वचन में हम देखते हैं बहुत से लोगों ने उपवास किया और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया। Fasting is outward expression of inward humility that feel. और आप अंदर से जो आप अपने आप को विनम्र कर रहे हैं, वो बाहरी रूप से उपवास के द्वारा दिखता है। That humility has a great value in the sight of God. और विनम्र अपने आप को कर लेना ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत मूल्यवान बात है। God says in Isaiah 57:15, और यशाया 57:14 में परमेश्वर कहते हैं, I live in a high and holy place, मैं तो एक बहुत ऊंचे स्थान में रहता हूँ, but also with him who is contrite and lowly in spirit. और उसके साथ भी रहता हूँ जो अपने हृदय में एकदम टूटा हुआ और विनम्र है। And King James Version says, I am also with you who is humble in his spirit. और किंग जेम्स का जो वर्जन है वो तो ये भी कहता है कि मैं उसके साथ रहता हूँ जो अपनी आत्मा में विनम्र है। God is high and holy place where we cannot reach him. और परमेश्वर एक तरफ तो उस ऊंचे और पवित्र स्थान पे रहता है जहां हम नहीं जा सकते, but we can make him come down by his humility in his presence. लेकिन वो हमारे साथ भी वास कर सकता है, हमारे साथ यहाँ नीचे पृथ्वी पर जब हम विनम्र होते हैं। Whenever we fast, we tell God, Lord, I come before your presence in humility. That's what we say when we fast. और जब उपवास रखते हैं तो फिर हम परमेश्वर से ये कहते हैं कि हम आपके पास विनम्र हृदय से आ रहे हैं। New Testament also talks about fasting so much. और नए नियम में भी हम देखते हैं कि उपवास के बारे में काफी कुछ बताया गया है। Jesus fasted 40 days.
यीशु मसीह ने 40 दिन तक का उपवास रखा He fasted 40 days before he faced the devil. और उसका शैतान से सामना करने से पहले 40 दिन तक पर यीशु मसीह ने उपवास रखा. You know, even Jesus needed the fasting before he faced the temptation. और उस परीक्षा में का सामना करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास की आवश्यकता पड़ी. No, we face temptation every day in our lives. हमारे सामने रोज मर्रा के जीवन में परीक्षाएं आती हैं. When Jesus needed the fasting to face the temptation, we need the fast much more than Jesus. अगर यीशु मसीह को उपवास की आवश्यकता पड़ी तो हमें भी कितनी ज्यादा इस बात की आवश्यकता है. I will give just one more example. When मैं एक और Jesus, उदाहरण आपको after the transfiguration scene, they were coming down from the mountain. और जब उस पर्वत पर प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के बाद जब वो नीचे आ रहे थे पर्वत से, There were some group of people arguing with his disciples. और वहां पे कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के शिष्यों के साथ कुछ बहस हो रही थी उनकी. So Jesus asked him, what is that? और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या बात हो रही है. One person brought his son and he said, my son is possessed with evil spirit, but your disciples could not heal it. और एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा जो पुत्र है उसको दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवास कर रही है और आपके शिष्य इसको अभी तक निकाल नहीं पाए हैं. Jesus asked him to bring him, and then Jesus healed that boy. और यीशु मसीह ने कहा कि अपने बेटे को लेके आओ और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी. After coming inside the house, the disciples asked him, why we were not able to cast out the demon. उसके बाद शिष्यों ने आके अंदर यीशु मसीह से पूछा कि हम क्यों नहीं इस दुष्ट आत्मा को निकाल पाए. Akansha, can you read that Mark chapter 9 verse 29? Are you there? Yes. Yeah. Yes, uncle. Yeah, Mark 9 verse 29. And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. What is that? By prayer and fasting. That's what Jesus said. और यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि ये प्रकार का जो कार्य है वो केवल प्रार्थना और उपवास के द्वारा ही संभव है. Jesus tells us, unless you fast, certain demon cannot leave you. और वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि जब तक उपवास ना रखें तो कुछ प्रकार के जो दुष्टात्मा है वो नहीं निकलेगी. But the recent translations, NIV, conveniently omitted that word fasting. लेकिन जो NIV का जो नया जो ट्रांसलेशन है उन्होंने वो उपवास शब्द को वहां से हटा दिया है. I am glad that she read from the King James version. और धन्यवाद हो कि उन्होंने किंग जेम्स वर्जन से इसको पढ़ा था. Because it says, God says, there are a lot of things we go through, certain things we have to fast and pray for us to come out of that. और बहुत सी चीजों से हम गुजरते हैं और कुछ बातों के लिए परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि हम प्रार्थना और उपवास के साथ उसका हम सामना ही कर सकते. You and I know we have a lot of temptation. We face every day different temptation in our lives. और आप और हम जो हैं वो बहुत सी परीक्षाओं से गुजरते हैं अपने जीवन में. And then devil is always trying to attack our mind. और जो शैतान है वो हमेशा हमारे मस्तिष्क पर सोच पर अपना धावा बोलता है. Jesus said, fast and pray to come out of the situation. और यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो उपवास रखो ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए. So we fast because we want to humble ourselves before God. तो हम उपवास रखते हैं ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने को दीन बनाने पाए. We fast because we want to get victory over certain particular temptation. और हम उपवास रखते हैं ताकि कुछ प्रकार के जो परीक्षाएं हैं उनसे हम बाहर निकलने पाए, उन पर विजयी होने पाए. We fast because we have a specific need that we और हम cannot fast. उपवास रखते हैं क्योंकि अगर कोई एक विशेष आवश्यकता है तो उसके लिए हम उपवास रखते हैं. Here, Jehoshaphat was in a position for specific need. और यहाँ पर यहोशाफात की जो परिस्थिति थी वो एक विशेष आवश्यकता थी. So he called the whole nation to fast and humble themselves before God. तो उसने पूरे राष्ट्र को कहा कि यहाँ पर उपवास रख के परमेश्वर के सामने दीन बने. They came from every town. हर शहर से आए. Verse 13 says, all men of Judah with his wives and children and little ones stood before the Lord.
और लिखा हुआ है कि यहूदा में सारे पुरुष, स्त्री, बच्चे सब आए परमेश्वर के सामने और दीन हुए। No, it must be in a huge sight in the sight of God. और परमेश्वर की दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा नजारा रहा होगा। They all gathered in the temple and stood before the Lord with fire. और वो सब जो थे वो मंदिर में जमा होके परमेश्वर के सामने खड़े हो गए। Okay, the third thing he did was to commit his problem in God's hand. तीसरा काम जो उसने किया वो अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने दे दिया। In verse 6, he says three things about God. छठे पद में तीन बातें उसने कही परमेश्वर की। He says, "Are you not the God who is in heaven? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? You rule over all the kingdom of the nations. और तू तो जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर तेरी प्रभुता है। Power and might are in your hands." और बल और पराक्रम तेरे हाथों में है। You know, the God whom we worship is the sovereign God. और जिस परमेश्वर को हम जो आराधना करते हैं वो महान परमेश्वर है। Sovereign means he is the sole ruler of the universe. और जिसका मतलब हो गया कि वो एक लौता इस पूरे ब्रह्मांड का वही चलाने वाला है, मालिक है। In Isaiah, he repeatedly say, "I am the one, there is none beside me." और यशाया में बार बार उसने कहा है कि मैं ही हूं और मेरे अलावा और कोई नहीं है। He is the only sovereign God and he is the ruler of the whole universe. That we have to remember very, very strongly in our mind. और वही एकमात्र हमारा परमेश्वर है। If he is sovereign, then he is in control of everything. और अगर वो एकमात्र परमेश्वर है तो हर बात उसके नियंत्रण में है। He is in control of everything in the world and he is in control of everything in your personal life. और पूरे संसार में हर एक बात उसके नियंत्रण में है और आपके जीवन की भी हर एक बात उसके नियंत्रण में है। If God is in control of my life and every aspect of my life, then I do not need to worry or afraid of anything. और अगर परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक बात परमेश्वर के नियंत्रण में है तो फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। Because nothing can go beyond his control. क्योंकि उसके नियंत्रण के हाथों से बाहर कुछ नहीं जा सकता। But if God is not sovereign in my life, then I have everything to be worried. लेकिन अगर परमेश्वर मेरे जीवन का एकमात्र मालिक नहीं है तब फिर मुझे चिंता करने की आवश्यकता है। If he is in control of your lives, he has all the power to deliver you in any difficult situation. लेकिन अगर वो आपके जीवन में मालिक है आपके जीवन का, तब फिर आपको किसी भी जीवन के किसी भी कष्ट में, समस्या में वो आपको छुटकारा दिला सकता है। He has the power, he has the might to deliver us from any situation. उसके पास सामर्थ है, उसके पास शक्ति है कि किसी भी परिस्थिति में आपको बाहर निकाल सकता है। Nothing is impossible for God. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। In verse 7 he says, "Did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel?" और 7वें पद में उसने कहा, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकालने के इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? No, this happened about 400 to 500 years before. और ये तो 400-500 साल पहले की बात है। When God brought Israelites from Egypt and settled them in this nation of Canaan. और जब परमेश्वर इजराइल देश से अपने लोगों को निकाल के लाए और कनान देश में उनको वहां पे Those days he chased out all the Canaanites and settled their people in this place. His people. और कनान के सब लोगों को जगह खाली करा के अपने लोगों को परमेश्वर ने वहां पे रखा। Now, as I said, it happened 400 to 500 years before. ये 400-500 साल पहले की बात है, जैसा मैंने कहा। But Jehoshaphat did not see it happening. लेकिन यहोशापात ने उस चीज को होते हुए नहीं देखा था। He only read about it, only heard about it. उसने सिर्फ सुना होगा और पढ़ा होगा इस बात के बारे में। But he believed in what he heard and what he read. लेकिन उसने विश्वास किया उस बात पर जो उसने पढ़ी और जो उसने सुनी। That's very, very important for us today as well. और आज हमारे लिए भी ये बहुत आवश्यक है। No, we have a complete written word of God. हमारे पास परमेश्वर का लिखा हुआ पूर्ण वचन हमारे सामने है। It is very important for us to believe what we read in the Bible. हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जो हम पढ़ते हैं उस पर विश्वास करें। Believe each and everything that is written in the Bible without questioning. हर एक बात जो वचन में लिखी है उस पर विश्वास करें बगैर संदेह किए हुए। That is very, very important for Christians to draw closer to God. ये बड़ी आवश्यक बात है ताकि मसीह लोग जो हैं वो परमेश्वर के नजदीक आने पाए।
Now, in this prayer, he has 3 questions to God. और इस प्रार्थना में उसने 3 सवाल पूछे परमेश्वर से। Are you not the God who is in heaven? क्या तू वो परमेश्वर नहीं है जो स्वर्ग में है? Did you not drive out these inhabitants of this nation? और यहाँ पे जितने लोग रह रहे थे, क्या उनको आपने जो पहले से उनको बाहर नहीं निकाला? Will you not judge them? और क्या आप उनका न्याय नहीं करेंगे? What he says is, you are the God who is in heaven now. और वो ये कह रहा है कि आप ही वो परमेश्वर हैं जो आज स्वर्ग में हैं। You are the God who were there 400-500 years before. और वही परमेश्वर आप हैं आज जो 400-500 साल पहले भी थे। And you are the God who is going to be there in my future. और आप वही परमेश्वर हैं जो आप मेरे आने वाले भविष्य में भी रहेंगे। In a sense, he says, Lord, you are eternal God. और एक प्रकार से वो कह रहा है कि परमेश्वर आप तो अनंत काल के परमेश्वर हैं। He is always there. हमेशा आप उपस्थित रहते हैं। He was with us yesterday. आप हमारे साथ कल थे, He is with us today. हमारे साथ आज हैं, And he will be with us tomorrow. और आने वाले कल में भी हमारे साथ रहेंगे। But the problem is we don't recognize the fact that he is with us always. लेकिन हम अक्सर इस बात को समझते नहीं है, मानते नहीं है कि वो सदैव हमारे साथ रहते हैं। He is being an eternal God. He is with us each and every moment of the day. और क्योंकि वो अनंत काल के परमेश्वर है, इसलिए हर क्षण हर पल वो हमारे साथ रहते हैं। He says in so many words, I will never leave you nor forsake you. और इतने शब्दों में, अलग अलग शब्दों में परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। But we are not able to recognize his presence in our life because we do not have that kind of close relationship with him. लेकिन हम उसके उपस्थिति को अपने जीवनों में समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा उसके साथ वो एक नजदीक संबंध नहीं है। So it's very, very important for us to build a close relationship with God so that we will recognize his fact that he is always with us. इसलिए परमेश्वर के साथ एक नजदीक संबंध बनाने की आवश्यकता है ताकि हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने पाए। Let me read verse 12 to you. 12वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। He says, Lord, will you not judge them? हे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? For we have no power to face this vast army. क्योंकि हमारे पास बस नहीं चलता कि हमें क्या करना चाहिए, And that is attacking us. जो हम पे चढ़ाई करने वाली है, हमारे पास सामर्थ नहीं है। We do not know what to do. हमें नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए। But our eyes are on you. लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। You know, he did something so beautiful. और एक बहुत सुंदर बात उसने यहाँ पर करी। He said, Lord, we do not know what to do, but our eyes are on you. उसने कहा, परमेश्वर, हमको नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं। Lord, we don't know what to do, but we surrender ourselves in your mighty hand. That's what he means there. और परमेश्वर, हमको नहीं मालूम कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। He completely surrendered his problem in God's hand. उसने अपनी समस्या को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया परमेश्वर के हाथों में। You know, did he have any other options? क्या उसके पास कोई और विकल्प था? Yeah, he did have an option. उसके पास विकल्प था, Because the king of Israel, Joram, was his relative. क्योंकि इजराइल का राजा जोराम जो था वो उसका रिश्तेदार था। Joram's sister Athaliah was married to his son. और जोराम की बहन अतालिया जो थी वो उसके बेटे से विवाहित थी। So he had a marital relationship with Israel. तो इजराइल के साथ उसका एक पारिवारिक संबंध था। He could easily call Joram and told him that please come and help me. और जोफ्राम को वो कह सकता था कि मेरी मदद करने के लिए आ जाओ। No, but he did not go. He went to the Lord. उसने ऐसा नहीं किया, वो परमेश्वर के पास गया। Even when he was in tight spot, in his eagerness to come out of that position, he did not seek any ungodly counsel. और ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी उसने किसी भी ऐसी उसने सिर्फ परमेश्वर का ही रुख किया और ऐसी बात की तरफ नहीं गया जो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। Yeah, because God did not like Joram at that point. क्योंकि उस समय पर परमेश्वर जोराम को पसंद नहीं करते थे। Once Jehoshaphat helped Joram's father Ahab, and God was angry with Jehoshaphat. एक बार यहोशापात ने जोराम के पिता की मदद करी थी और उस बात से परमेश्वर नाराज थे। So he knew God did not like him to go and seek help there. He did not seek help from anybody, but went to God.
तो उसको मालूम था कि अगर वो वहां जाएगा मदद मांगने तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होंगे, इसलिए वो सीधा परमेश्वर के ही पास गया। No, whenever we are in that kind of situation, when we know there is no way to come out in a right way, please do not try anything. Just leave that matter in God's hand and wait. और जब ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि हमें सही रास्ता नहीं मालूम है, तो परमेश्वर के हाथों में उस स्थिति को डाल दें और प्रतीक्षा करें। When you do not know when you do not know what to do nothing. और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो कुछ मत करिए। Just trust God. Just leave your matter in God's hand and trust Him. He will bring deliverance. तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए और अपनी बात को परमेश्वर के हाथों में डाल दीजिए, वो अवश्य ही आपके लिए कोई रास्ता निकालेगा। No, it is not something theory I'm speaking. We are experienced in my life. We are experienced so many times in our lives. और ये मैं आपको सिर्फ कोई किताबी बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमने जीवन में इस बात को कई बार अनुभव किया है। You trust God and commit your matter in God's hand and wait and see whether if God delivers you or not. परमेश्वर पर भरोसा रख के अपनी उस समस्या को परमेश्वर के हाथों में डाल देते हैं और उसका फिर इंतजार करते हैं। No, that is what Jehoshaphat did. When he faced with this situation, he went to the Lord, he proclaimed fast, and he took the problem and gave it to God. और यही यहोशाफात ने किया। जब उसके पास समस्या आई तो उसने उपवास रखा, उसने जाके परमेश्वर के हाथों में अपनी इस पूरी समस्या को दे दिया और इंतजार किया। You know, the moment he gave the problem to God, God took it as his problem. और जैसे उसने उस समस्या को परमेश्वर के हाथों में दिया, परमेश्वर ने उस समस्या को अपनी समस्या बना लिया। Immediately God spoke to Jehoshaphat through a man who was standing in that group. और तुरंत परमेश्वर ने यहोशाफात से बात करी एक मनुष्य के द्वारा जो वहां भीड़ में खड़ा हुआ था। Verse 14-15 he says, do not be afraid and do not be discouraged. और 15 में वो कहने लगा कि तुम जो हो वो डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। Because of this vast army. और इस भीड़ की वजह से। For the battle is not yours, it is God's. But it's God's. क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। This battle is not yours anymore. It is my battle. That's what God says. और ये जो लड़ाई है, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारी अब नहीं है, वो लड़ाई मेरी लड़ाई है। The problem is not yours anymore. It is my problem. That's what God says. समस्या जो है वो तुम्हारी नहीं है, अब वो मेरी समस्या है। We worship the same God. हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं। He is willing to take all your problem as his problem. और वही परमेश्वर आपकी समस्या को अपनी समस्या बनाना चाहता है। If you are willing to hand over your problem to his hand, say, Lord, it is I have given you in your hand, you handle it. अगर आप इच्छुक हैं कि अपनी समस्याओं को, परिस्थितियों को उसके हाथ में दे दें और कहें कि परमेश्वर अब आप ही इसके आगे इसका रास्ता निकालिए। So when you fast and pray and commit your problem to God, God takes care of your problems. और इसलिए जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो और अपनी समस्याओं को, परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, तो फिर वो उसका ध्यान रखता है। The devil may come to you and put a lot of doubt in your heart and say, hey, it doesn't work that way. हो सकता है शैतान जो है आपके दिमाग में, दिल में बहुत से संदेह डाल दे कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा करने से। Don't listen to him. It works. लेकिन इसको, उसकी आवाज को ना सुने, क्योंकि ये कार्य करता है। The only thing God asked me to do was take up your position and stand firm in your faith. और परमेश्वर ने उससे कहा कि अपना स्थान संभाल लो और विश्वास में खड़े रहो। वो Judah, वो Jerusalem, do not be afraid, do not be discouraged. और कहा कि यरूशलेम है, यरूशलेम जो हो वो तुम हताश ना हो। Go and face his army tomorrow. I am कल जाना और जाके इस सेना का सामना करना, मैं तुम्हारे साथ। God says, cast all your anxiety on me. Go and face the situation. I will be with you. परमेश्वर कहते हैं कि अपने सारी चिंताओं को मुझ पे डाल दो और जाके सामना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Do not be afraid. Do not be discouraged. God is not telling you to go without facing that problem. और परमेश्वर कह रहे हैं कि डरो मत। परमेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जो हो समस्या का सामना नहीं करोगे। But he says, face the problem, but I will be with you. लेकिन वो ये कह रहे हैं कि समस्या का सामना करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। If you further read that portion, आप आगे जब उस पद को पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ेंगे, you will see that is the only army in the whole universe which went to the war with singing. और आप देखेंगे कि ये एकमात्र एक ऐसा सेना थी
जो लड़ाई में तो गई लेकिन भजनों को, गीतों को गाते हुए। As they sang praises, those enemies fought among each other and killed each other. और जब ये लोग भजनों को गा रहे थे तो वो दुश्मन वाली सेना आपस में ही लड़ गई, आपस में ही लड़ के मर गई। Jehoshaphat's army went there only to gather the plunders. और जो यहोशापात की सेना थी वो तो वहां सिर्फ इसलिए गए कि जो बचा था उसको अपने साथ लूट के लेके आ जाए। All he did was humbled himself and committed his problem in God's hand. God took it as his problem and brought victory in his life. तो उसने बस ये किया कि अपने आप को विनम्र कर लिया, दीन कर लिया और परमेश्वर ने उसके सारी परिस्थितियों को, समस्याओं को संभाल लिया। He went to the Lord with his problem. Repeat that uncle, please. He went to the Lord with his problem. वो परमेश्वर के पास अपनी समस्या को लेके गया। He proclaimed a fast and humbled himself before God. उसने उपवास का घोषणा करी और उसने अपने आप को विनम्र किया And committed his problem in God's hand. और उसने अपनी परिस्थिति को, समस्या को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। And God took his problem as his problem and gave him the victory. और परमेश्वर ने उसकी समस्या को अपनी समस्या बनाकर उसको विजय दी। Now we all know how to face the difficult situation in our lives. और हम जानते हैं कि अब मुश्किल परिस्थितियों का सामना कैसे हम कर सकते हैं। As we face the difficult situation in our, may the Lord help us to focus our eyes upon Him alone, and with His help come out of all the problem and situation. और जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर की सहायता से हम विजय प्राप्त करने पाए। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Let's just pray. Our Father, we thank you, Lord, for this today's message that you have given to us. धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का संदेश जो आपने हमें दिया। We thank you, Lord, that we have great examples in the Bible where you helped your people in impossible situations. परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपने वचन में ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जहां पर आपने अपने लोगों की मदद करी ऐसी परिस्थितियों में जो बिल्कुल असंभव थी। Yes, Father. Lord, we pray that when we are in difficult situations, Lord, you will help us to humble ourselves before you. प्रभु जी, जब हम मुश्किल परिस्थितियों में आते हैं तो हम अपने आप को आपके सामने दीन करने पाए। Lord, we will not turn to worldly ways, but we will first of all go to you. परमेश्वर, हम संसारिक लोगों की तरफ ना जाएं, लेकिन सर्वप्रथम आपके सामने अपनी परिस्थितियों को रखने पाए। प्रभु जी, हम आप पे विश्वास करने पाए। Lord, that we may trust you. Lord, that we may believe that you can deliver us if we are truly following you. परमेश्वर, हम इस बात पे विश्वास करने पाए कि आप सचमुच में हमें सारी परिस्थितियों से, मुश्किल परिस्थितियों से निकाल सकते हैं जब हम आपके साथ बन के रहते हैं। Help us, Lord, to continue to put a trust in you in all situations. परमेश्वर, हर एक परिस्थिति में हम अपना भरोसा आप पे लगाए रहें। We ask this prayer in Jesus' precious name. In response to hearing